ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿ4 ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯ ಸಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಜೆಸಿ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗಡೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಜೆಸಿ ಮಿತ್ರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜೆಎಸಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂಜಲಿ ಗುಪ್ತಾ ಬತ್ರಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ, ನಮ್ಮ ಝೋನ್ 15ರ ಜೆಎಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಶಾ ಆಲನ್ ವಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ. ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಮೂರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೆಸಿಐ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಬ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಝೋನ್ 15 ಮ್ಯಾಮ್. थैंक यू मैम. इट्स अ प्लेजर हैविंग you and having 2 lady leaders together. अच्छा लगता है कि women empowerment हो रहा है. It's my pleasure. Here is no lady leader. Here is 3 lady leaders. Thank you so much. It is definitely a pleasure. मैं हमेशा बोलती रहती हूँ मेरी हर एक इंटरव्यू में या प्लेटफॉर्म में, JCI एक ऐसी संस्था है जिसने मेरी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट किया है. Same so here, what is JCI for you, ma'am? Everything. JCI is my life. If I'm sitting here, so only all credit goes to JCI. I started my journey in JCI 2006. And 2006 to today, I am standing 2025. Until 19 years, I completed my journey in 19 years JCI. And really, you are not believing, but I smile believing. I achieve everything only for JCI. Wow. If I am talking about my business, if I am talking about my leadership, see, all credit goes to only JCI organization. It is everything for me and my life and my family also. So आज के दिन में अंजलि गुप्ता बत्रा, जो आपका नाम है, वी ऑल नो यू एज अ नेशनल लीडर, नेशनल चेयरमैन, आई थिंक द फर्स्ट लेडी नेशनल चेयरमैन फॉर जेएसी. लेकिन अंजलि जी कहाँ से आते हैं, आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, आप कहाँ से अपब्रिंगिंग हुआ है, तो थोड़ी बहुत आपकी बचपन के बारे में. Actually, if I am talking about I am belong to North India as a ग्वालियर, मध्य प्रदेश. अगर आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, तानसेन, सुरों के सरताज तानसेन के बारे में, मैं उनकी नगरी से बिलोंग करती हूँ. आई एम बिलोंग टू दिस सिटी एंड वेरी नॉर्मल फैमिली. आई एम बिलोंग टू वेरी नॉर्मल फैमिली. And after my marriage, I will start my JCI journey 2006. I am business entrepreneur. I am entrepreneur also, female entrepreneurs. And I am just sharing here the one thing. And if I am sitting any JCI platform anywhere, I am always मैं इस points को जरूर share करती हूँ. मेरी JCI ने life को किस तरीके से change किया. JCI is very big organization. You know, this is very helpful for our personality development. And I am already mentioned here the business also. So is my husband attend the first time ABLE program. 2016 is the first ABLE program. Now 2025 2024 is my last. That time I attend the program. And 2016 से 2024 तक मेरी फैमिली में से we are belong 3 members belong to business, me, my husband and my brother-in-law. Every year कोई ना कोई जाता है ABLE में. And 2016 I have only one showroom that time. I was only one showroom and I was dealing on the 2 items, almiras and coolers. But now I have 12 multi-brand showrooms. I am dealing with the electronics, I am dealing with the furniture, furnishing and so many things. And I am the distributor also, and we have something the 50 dealers. So this is the power of the JCI. अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं यहाँ यूथ को स्पेशली रूप से एड्रेस करना चाहूँगी. इफ़ यू वांट समथिंग फॉर योर लाइफ, सो प्लीज़ यू कम
एंड ज्वाइन JCI. JCI ओनली वन प्लेटफॉर्म, वो आपके लिए सोचता है. ओनली वन थिंग, अगर आप इस दुनिया को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को डेवलप करना होगा. इफ़ यू वांट कि दिस you earn something, you learn something, so only this is the one platform is useful for you. वंडरफुल. तो मैं JCI को बहुत नज़दीक से जानती हूँ, इसलिए मैं समझ पा रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं. बट फॉर पीपल हु डोंट नो, एबल एक ऐसी प्रोग्राम है जो बिजनेसमैन के लिए ही किया जाता है, जस्ट फॉर द पीपल ऑफ बिजनेस बैकग्राउंड टू इम्प्रूव देयर बिजनेस करियर एंड लर्न हाउ यू कैन इम्प्रोवाइज योर बिजनेस. सो एक शोरूम से 12 शोरूम, 12 शोरूम्स, इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी. तो उसके साथ एक साधारण मेंबर से आज नेशनल चेयरमैन बनी है, तो जर्नी हैज बीन इनक्रेडिबल, सुपर्ब. सो वी विल कम बैक टू योर जर्नी. Beside that, we have yet another lady who has had a wonderful journey as well, being a normal member of JCI. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ JSC ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಸೊ ಶಿ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆಶಾ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ JC ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಫಸ್ಟ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ JC. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ನಾನು JCಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ನಾನು ತುಂಬ JCಗೆ ಅಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ JCಗೆ ಹೋಗೋದಂತ. ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣ JCಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ JCಯಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಝೋನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ JCಯಿಂದನೇ ಕಾರಣ. ನನ್ನನ್ನು ಜನರು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ JCಯಿಂದನೇ ಕಾರಣ. ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರಿ JC ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾರ ಜಗಳ ಮಾಡಿದುಂಟು ಎಂತ ನಿಮ್ದು? ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು JC ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾನು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮದುವೆ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2007 ನಾನು JCಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಸ್ ಅ JC ರೇಟ್ ಆಗಿ. ರೆಡ್ ಟೈಮ್ JC ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಲೇಡಿ JC ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು, ಖಾಲಿ JCಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, JCಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು JC ಖಾಲಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ನಂತರ ಅನಿಸ್ತು ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ JCದು ಹುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತ ನಿಂದು JC ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೂ ನನಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ. ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಮಗ JC ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ 4 ಜನ JCದ್ದೇ ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. नाइस. मैडम, जैसे हम बात कर रहे थे, घर में जब वो JC रेट बन के आई थी तो बोलती थी कि क्या है JC, उसी से शादी करना चाहिए था वगैरह, सब उनके घर में होता था. ऐसा कुछ आपके घर में हुआ था आपके साइड से, या अब हो रहा है क्योंकि आप नेशनल चेयरमैन है, घर में तो रहते नहीं है, पता नहीं भैया क्या बोलते रहते? ऐसा कुछ चिक JC के वजह से घर में होता है क्या? दिस इज फॉर द आम जनता, कैसे होता है? नहीं, एक्चुअली अगर आप सारी चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता. एंड मेरे हस्बैंड भी JC हैं, वो जोन सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो नाउ इज़ द पास जोन सेक्रेटरी. और वो भी JCs को समझते हैं और उन्होंने भी यहाँ से बहुत कुछ अर्न किया है. सो इस तरीके का नहीं होता. लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी मैं नेशनल चेयरमैन की पोस्ट पर हूँ और एज अ नेशनल चेयरमैन मेरे कम से कम साल में मिनिमम 250 डेज मैं अपने घर में नहीं रह पा रही हूँ. सो बट मैं मिस करती हूँ, वो मुझे मिस करते हैं, पर फाइटिंग और ये सब नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सो उसको हमें 100% देना होगा. और वो भी JCs की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इसलिए इस तरीके का कोई भी माहौल नहीं आता. फाइटिंग तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे मजाकिया नोकझोंक नहीं है तो फिर क्या जिंदगी है? वो बहुत ज़रूरी है. राइट. एनीवेज, कमिंग बैक टू लीडरशिप, जब मैंने इंट्रोड्यूस किया कि हमारे साथ 2 लीडर्स, लेडी लीडर्स है, आपने बोला नो लेडी लीडर्स. दैट इज व्हाट JCI ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स. नो मोर लेडी लीडर्स एंड मैन लीडर्स, इट इज लीडर्स बाय इटसेल्फ. लेकिन एक महिला होने के बावजूद हमें लगता है कि एज अ लेडी लीडरशिप लैडर इज डिफिकल्ट. क्या आपको कभी ऐसा लगा है? इज इट ट्रू? हमारा पार्टिसिपेशन हर जगह पे कम है. एज अ फीमेल अगर हम बात करें, चाहे हम सोसाइटी में बात करें, चाहे हम सोशली बात करें, चाहे हम बिज़नेस में बात करें, हमारा पार्टिसिपेशन बहुत कम है. अगर
100 मेल्स वर्क कर रहे हैं तो फीमेल्स को अगर हम देखेंगे तो 2 या 3 फीमेल्स होंगी, तो हमारा रेशो वो कम है। और उसका कारण मैं मेल्स को नहीं बताती, उसका कारण हम खुद हैं। True. क्योंकि हम खुद से आगे नहीं आना चाहते। जब बात आती है आगे आने की तो हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा बहुत सारे बहाने होते हैं, बट हम उसके लिए कसूरवार बताते हैं मेल्स को। वन थिंग। सेकेंड थिंग कि हाँ, जब आप इस माहौल में आते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फेवर में भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें अनफेवर में भी होती हैं। डिपेंड है आप उस सिचुएशन से किस तरीके से निकलना जानते हैं। अगर आप उस सिचुएशन को पॉजिटिव माइंडसेट से टैगल करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने उस सिचुएशन को नेगेटिव माइंडसेट से टैगल किया तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बट मुझे ऐसा लगता है मेल्स या लीडर्स की भी बात कर लूँ मैं, वो हमेशा सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करना होगा। ट्रू। सिंपल थिंग्स। हम किसी के ऊपर कोई मुझसे कहता है मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं कहती हूँ किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, ये मैं थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। तो फर्स्ट हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। हर कोई चाहता है कि फीमेल लीडर आगे आए और सर्च भी करते हैं, लेकिन हमारे पास कहीं पर भी कोई संभावनाएं नहीं होती, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होते कि हम फीमेल लीडर्स को आगे लेकर आए। तो मेरा यहाँ से एक अनुरोध है कि प्लीज़, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो एक कहते हैं ना सिक्स सेंस फीमेल्स के पास एक्स्ट्रा होता है, हमारे पास जो सिक्स सेंस है वो किसी के पास नहीं है। हमारे पास जो मैनेजमेंट क्वालिटी है, स्किल्स है, वो किसी के पास नहीं है। हम टाइम को इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास जो परफेक्शन है वो किसी के पास नहीं है। हम सेटिस्फाई करना जानते हैं लोगों को, हम लोगों को समझा सकते हैं अपनी बात को, लेकिन प्रॉब्लम बस हमारे अंदर है। तो हमें एक कदम आगे लेंगे, अगर हम एक कदम आगे लेंगे तो ये पूरी दुनिया वेट कर रही है एक हाथ आगे बढ़ाकर आपको आगे खींचने के लिए। वेरी नाइस। तो दिस विल डेफिनेटली बी अ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन बहुत लोगों के लिए जो सुन रहे हैं। जब मैं JCI में आई थी सब लोगों ने बोला लेट हो गया, यू डोंट हैव टाइम, फिर भी आई टुक अप द लीडरशिप लैडर, बहुत जल्दी से गई। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत साल के लिए वेट करते। सो व्हाट कुड बी द रीजन? क्या हो सकता है कि इतने सालों से है लेकिन आगे नहीं बढ़ सके, या लीडरशिप लैडर नहीं, दे आर मेंबर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट JC और लायंस और रोटरी, आई डोंट वांट टू मेंशन, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में है लेकिन लैडर या लीडरशिप या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लेने से हिचकिचाते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन? एक्चुअली ही इज नॉट बिलोंग टू बाय हार्ट, ही इज नॉट टच बाय हार्ट, main problem. I also joined my JCI career 2006. I was a member of 2006. 2016 I take the chance for the LO president. मैंने अपने 10 साल वेस्ट किए। 10 साल तक मुझे ये लग रहा था कि नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए आई हूँ। लर्निंग वाला जो एक माइंडसेट था वो मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही 2016 में एक बार किसी ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे मोटिवेट बहुत टाइम से किया जा रहा था, एंड मैं हमेशा उसको बोलती थी मुझे अभी नहीं बनना, अभी तो मुझे एंजॉय करना है। लेकिन उस समय कहते हैं ना अधूरा ज्ञान बड़ा नुकसानदायक होता है। इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली नॉलेजेबल, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस समय मेरे साथ भी यही हुआ था। अच्छा। एंड आई एम थैंक यू फॉर द JAC। इस JAC बनने के बाद, क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि JCI का कुछ रूल्स हैं। इफ़ यू आर द 18 to 40 years तो यू आर द एलिजिबल फॉर द JCI मेंबर। इफ़ यू क्रॉस द 40 years तो you are not eligible for any leadership ladder. Correct. So 2016 I was the president, 17 ZVP, 18 ZP, 19 ND, and 2020 I complete. Normally females अपनी एज नहीं बताती, मैं अपनी एज बता दिया। I completed my 40 years. अच्छा। मेरे पास leadership ladder खत्म हो गया था। तो वो JCI की गलती नहीं थी, वो मेरी गलती थी। True. Yeah, but I am thankful for the JCI leader organization our. उन्होंने अभी जो JEC स्टार्ट किया उसमें 40 के बाद वाले लैडर्स को, 40 के बाद वाली एज को एक लीडरशिप का एक और मौका मिला, और हम
फिर से उस लीडरशिप में आके अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम वर्क करना चाहते थे और हम जो और नया लर्न करना चाहते थे, वो हम यहाँ से फिर से कर पा रहे हैं। वंडरफुल। मैं पूछना चाहती थी लोगों के लिए कि JAC क्या होता है, तो आप बताएंगे। सो एनीवेज मैडम हैज टोल्ड इट, JCI एज एन ऑर्गनाइजेशन 18ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ 18 to 40 years. But what after 40? Yeah, people say you get naughty after 40, but it's not the same. We need experience, we need opportunities, we need chances where we can show our leadership skills, and that is why JCI India came up with the program called JAC, the Alumni Club. And today we have the national chairman of the Alumni Club and the zone chairman of the Alumni Club of our zone 15. So tumba khushi aagta ide to have two lady leaders. So Asha avarige ee prashne, ಲೇಡಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ? ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ JCಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಾನೊಂದು ಝೋನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಲ್ಯಾಡರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. 2014 LO ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ LOದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಅಂತ, ಏಜ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ 18 to 40 years. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ 2019ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದೆ, LO ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚಿಡಿತು JC. ಸೊ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಝೋನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ. ಆವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಝೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ, ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆದೆ, ZVP ಆದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಏಜ್ ಫುಲ್ ಮುಗೀತು. 18 to 40 years ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ JC ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸರ ಅನಿಸ್ತು, ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಝೋನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ JSC ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅನಿಸ್ತು, ಇದರಲ್ಲಾದರೂ ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ತಿರುಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 2025 ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಝೋನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಮೋಡ್ ಕೂಡ ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಈಜಲಿಕ್ಕೊಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಟಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಏನಿಲ್ಲ, LO ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸಮರ್ಥಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗುಡ್. Wonderful. So coming back to Madam, JAC, the Alumni Club of JCI India. As a national chairman, how would you like to show this organization to the general public? क्या है JAC और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? यस मैम, एक्चुअली JAC के लिए अगर हम बात करते हैं तो JAC हमारे लिए हर तरफ से हेल्पफुल है. If we are talking about this, we are crossing the 40. Now is not time for the learning. Now time for the educate. What हमने जो सीखा है उसको हम किस तरीके से अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं. तो अगर मैं JAC की बात करूँ तो JAC का एक हमारा बहुत अच्छा इवेंट होता है बिजनेस कॉन्क्लेव, जो अभी लास्ट टाइम नोएडा में हुआ था. एंड उसमें उस बिजनेस कॉन्क्लेव में 32 MOU साइन हुए थे एंड बर्थ ऑफ द 400+ crore. Wow. Yes. So this is the JAC, is the power. We all are So the members from JAC are going to have a tie-up with... Yeah, JAC member. Actually, we have so many members in all over India, and we are not connected. This is the best platform. We are connected for the all over India JAC people. और हमारा business JAC to JAC हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं. This तो 400 करोड़ का बिजनेस MOU साइन होना इज़ नॉट अ इजी टास्क. इस तरीके के हम लोग बिजनेस कॉन्क्लेव करते हैं, हम लोग काफ़ी सारे इवेंट्स करते हैं. दिस टाइम फॉर द सेलिब्रेशन एंड अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना. सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर हियर कि जोन 15 ऑल्सो प्लानिंग फॉर द वन कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम परंपरा 9, 10th और 11th अगस्त. इसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया से JAC पीपल्स आएंगे और वो हमारे कल्चर्स को, हमारी बॉन्डिंग्स को, हमारे रिलेशंस को मेंटेन करेंगे, करीब से देखेंगे. और दिस इज़ द मेन टाइम. इफ़ यू आर क्रॉस द 40 नाउ, आई ऑलरेडी क्रॉस द 40 एंड 1 year बिफोर अगर मैं बात करूँ, मेरा फैमिली सिर्फ वहीं तक था, मेरा शहर
मेरे रिश्तेदार। बट अगर आज मैं बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में मेरे 10,000 से ज़्यादा परिवार हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ द JAC। तो कनेक्टिंग फ्रेंडशिप या एंड रीस्टार्ट ऑल्सो। जब हम इस तरीके के प्रोग्राम्स में जाते हैं तो जहां हमने देखा है 50 to 60 इयर्स का पीपल कहता है ओके मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय कर लिया लेकिन अब वो यहाँ से जीना शुरू करता है और उसके पास जितने एक्सपीरियंस हैं, उसके पास जो जो बातें हैं वो दूसरों को शेयर करता है, क्योंकि वी ऑल आर द एक्सपीरियंस गाय। नाउ इज द टाइम फॉर द एक्सचेंज अवर आइडियाज। So this is the best platform. One thing. Second thing, if you are talking about the JAC, I am starting here the JCI. JCI only one organization who provide the welfare fund. ओके, तो वेलफेयर फंड के बारे में कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, सिर्फ JC है तो मिलेगा, JAC है तो नहीं मिलेगा, ये सब कंफ्यूजन रहता है। इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो 2023 में हम लोगों ने वेलफेयर फंड की स्टार्टिंग किया है और वेलफेयर फंड ओनली एक JCI ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे अगर किसी भी मेंबर्स को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को हम लोग वेलफेयर फंड प्रोवाइड कराते हैं। अभी लास्ट ईयर हमारे जोन से हमारे यहाँ के एक सेक्रेटरी को डेथ हो गया था अचानक, तो उनको 23 लाख का वेलफेयर फंड प्रोवाइड कराया गया था। वन थिंग्स, तो ऑल जितने भी मेंबर्स 18 से 40 वर्ष के हैं उनको JCI के द्वारा वेलफेयर फंड प्रोवाइड कराया जाता है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो मेंबर 40 क्रॉस कर चुके हैं और वो JCI से JAC में माइग्रेट हो चुके हैं तो 40 to 50 हम लोग JCI उनको वेलफेयर फंड के लिए वो एलिजिबल है या माइग्रेटेड मेंबर। राइट, तो ये लोगों की जानकारी के लिए मैं बोलती हूँ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ये होता है कि ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿ JCI ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡನ್. ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ವಿಧಿವಶದಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು, ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು JCI ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 18 to 40. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ JAC has come in as a very important segment from JCI ಇಂಡಿಯಾ, ನೀವು JC ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು JACಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯುವರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ access is still available from 40 to 50 years, and that has been seen in the past few years. I share my one experience. Before 4 months ago, our one JAC member died. Some accident. It's the February month. It's belong to Zone 5, Kota. So people are informed the JCI India headquarter, and so we also is the. So that time suddenly he crossed the 40 before 2 years. And migrated our membership in a JAC. Okay. That's why he is the eligible for the welfare fund. I attend this one program for the hosted by Zone 5, and I hand over the check, 10 lakh rupees check I hand over the his family. So this is the power of the, and this is only one organization जो कहते हैं ना कि अपने मेंबर का साथ उसके जाने के बाद भी उसकी फैमिली को देता है। अदरवाइज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइएगा, तब है तो मेंबर है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन JCI ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन जो ये कहता है मेंबर ने हमें इतनी सेवाएं दी हैं, मेंबर्स ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया है, अगर आज उसको कुछ हो जाता है तो हम उसकी फैमिली के लिए खड़े हुए हैं। Yes. So this is very important. When we're talking about the emotional part, let's talk about the business part now. JCOM एक उभरती हुई संस्था है, again a part of Junior Chamber International. JCOM which is promoting business for JC members. अभी JC members और JAC members, how can they benefit from JCOM as a national really is very good program for the JCI side, JCOM, and all over India maybe is the 5,000 plus member our JCOM. And अगर हम बात करें तो हम लोग करोड़ों का बिजनेस एक्सचेंज कर रहे हैं। इफ़ यू आर द JCI मेंबर यू आर एलिजिबल फॉर द JCOM, एंड इफ़ यू आर द JAC मेंबर यू आर एलिजिबल फॉर द JCOM मेंबरशिप। अगर आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं, अगर आप अपना, क्योंकि अगर आज की बात करें तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है सो हमारे लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हैं। सबसे पहले बिजनेस को हमें देखना है, तो JCI और JAC बोथ हम लोग JCOM के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सभी लोग अपने बिजनेस को यहाँ पर बेनिफिट उठा पा रहे हैं। कई तरीके की मीटिंग होती हैं, मंथली 4 मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपके बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को कैसे, एंड ऑनलाइन
ये 5000 पीपल्स ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है और अपने बिजनेस को एक्सचेंज कर रहे हैं. तो दिस इज द वेरी गुड प्लेटफॉर्म. वंडरफुल. तो हमेशा हम जब जेसी के प्रोग्राम्स के या पिक्चर्स या फोटोज इंस्टाग्राम में या फेसबुक में डालते रहते हैं, तो कितने लोगों ने पूछा है, सौजन्या मैडम ಇದರಲ್ಲಿ सैलरी ಸಿಗುತ್ತಾ, आपको कुछ मिलता है क्या इससे, महीने महीने में कुछ एक्सपेंस या कुछ मिलता है क्या? लाइक नो, कुछ सैलरी वैलरी नहीं मिलता है, ಕೈಯಿಂದನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ನಾಪನ್, ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫैक्शन. सो एज अ नेशनल चेयरमैन डेफिनेटली आप घूम रहे, बट व्हाट इज दैट 1 or 2 प्रोग्राम्स दैट यू हैव अटेंडेड और आपके दिल के करीब है, मे बी एन इमोशनली कनेक्टेड प्रोग्राम या कुछ समथिंग विच यू रियली फेल्ट नाइस बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ सर्विस या प्रोग्राम हुआ है? JCI and JAC focus for the sustainable project. Yes. And if we are talking about the sustainable project, so many programs, all zone sites completed done, या बहुत सारे zones कर रहे हैं और मैंने भी काफ़ी सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं. अगर मैं जोन 15 की बात करूं तो कल जोन 15 ने मुझे मेरी ज़िंदगी का वो पहलू दिखाया जो शायद हम लोग एक दिन में एक साथ नहीं देख सकते. मॉर्निंग आई स्टार्टेड माई जर्नी इज़ द वन ओल्ड एज होम. दैट टाइम आई फेल्ट कि यस, दिस इज़ द लाइफ. And I appreciate here कि zone 15 people gave 1 lakh rupees contribution this old age home. So it's not a easy task. उसके बाद में मुझे संदीपनी स्कूल का विज़िट करने का मौका मिला. वहाँ पर एक 3 साल और 4 साल के बच्चों का मिलने का मौका मिला. तब मुझे लगा कि हाँ, एक ये भी हमारी लाइफ का पार्ट है. सो उसके बाद में जेसीस स्कूल में जाने का मौका मिला. वहाँ पे मैंने हमारे लाइफ के फ्यूचर को देखा कि दिस इज़ द फ्यूचर. आप कनेक्ट करिएगा कि हम हर एज ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं. उसके बाद हम लोग एक स्पेशल चाइल्ड स्कूल में गए. सो वहाँ पर मुझे ये समझने का मौका मिला कि ये भी लाइफ का पार्ट है और हमें इसको भी फेस करना है. वो हमारे नहीं है लेकिन वो हमारे हैं. अगर वो हमारे नहीं हैं तो वहाँ हम क्यों 1 लाख रुपए का डोनेशन दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे दिल से कनेक्टेड है. इसके अलावा कई जोन्स में हमारे यहाँ परमानेंट प्रोजेक्ट पे फोकस किया जा रहा है. कई जोन्स में जेसीस भवन बन गए हैं. अभी हमारा जो जोन काफ़ी सारे फोकस कर रहे हैं. सो एक हमारा प्रोग्राम आया है नमस्ते इंडिया, JEC का. नमस्ते इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल, वी ऑल आर द एजुकेटेड. सो हमारा जो बातचीत करने का तरीका है, हमारा जो पब्लिक के साथ रिलेट करने का तरीका है, डिफरेंट है. बट अगर हम सोसाइटी में देखेंगे तो हम कितना रिलेट करते हैं. और एक जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल पीपल इन द सेंस जो रोड पर सफाई कर रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर के छोटा स्टाफ है, या जो नर्सेस हैं, जो मतलब जो उतने एजुकेटेड नहीं हैं और जो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं. आपका कैब ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, तो उनके लिए, और वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो कई बार मिसबिहेव कर जाते हैं बाय टॉकिंग, बाय face expression. So we are planning for this Namaste. We launched the Namaste India. We educate this type of peoples. अच्छा, This is the very important. Actually जब इस तरीके के people कुछ भी गलत बिहेव करते हैं और वो सोसाइटी में जाता है तो उससे हमारे इंडिया के नाम को फ़र्क पड़ता है. तो दिस ईयर वी स्टार्ट दिस नमस्ते इंडिया प्रोजेक्ट फॉर द नॉर्मल वेरी सर्विस सेक्टर, जो नॉर्मल सर्विस सेक्टर है, उन लोगों को एजुकेट करने के लिए हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं. ನೈಸ್, ठीक है. ಸೊ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್, आपके इस साल के जर्नी में ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆನಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ನನ್ನದಿದ್ದು 6 months ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೃದಯಗೆ ಟಚ್ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮದು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. JCಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಳು ಬಂತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ZVC ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಖುಷಿ, ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಝೋನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಂಥ ದಿನ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡನ್. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಆಲ್. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ side by side. What is that three things which is always there in Anjali ma'am's bag? घर से निकलते हैं तो ये मेरे बैग में हमेशा रहेगा क्या? एक तो जेसी पिन. अच्छा, Every time. Okay, one. This is my mobile charger. And most important thing, money. Money. अभी तो कैशलेस इंडिया हो गया. Okay, so आशा. JC पिन, Okay. चार्जर, Okay. वो बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ. इस बार. उसके बाद कैश तो रहेगा ही, एक पैड रहता है हो, जो पॉइंट्स लिखने के लिए आज मुझे क्या काम करना है, लीडर बन गई है. तो ये रहता है. और उससे ज्यादा स्माइल. हाँ, वो बैग में नहीं रहता, चेहरे पे रहता है. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर्स. अगर किसी और लड़की से पूछते तो बोलते मेरा लिप ग्लॉस होता, मेरा काजल होता और मेरा कोम रहता. सो एवरीथिंग कनेक्टेड टू देयर लीडरशिप जर्नी. वंडरफुल. तो वो क्या तीन चीजें हैं जो JCI ने आपको दिया है? JCI ने मुझे बहुत कुछ किया है. अगर 3 लाइंस मैं अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करती हूँ, और मैंने कहीं पर वो लाइन सुनी थी, और वो जब भी मुझे मौका मिलता है तो उन लाइंस को, क्योंकि मेरी लाइफ का जो मुझे JCI ने सिखाया, या ये कह दूँ कि जब मैं JCI में काम किया और उससे मैंने जब सोसाइटी को देखा, तो एक्चुअली भगवान खुद नहीं आते, भगवान दिखते भी नहीं है. भगवान हम जैसे या आप जैसे या इन जैसे लोगों के रूप में आते हैं लोगों की मदद करने के लिए. सो वो जब 4 लाइनें मैंने जब पढ़ी थी तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई थी, और वो 4 लाइनें मैं यहाँ ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में वही चाहती हूँ. किसी ने कहा था कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए दोस्तों, जीना है तो जी हज़ारों के लिए. वाह वाह वाह. सो क्या बात है. अगर लीडरशिप में मैं हूँ और इन फ्यूचर में किसी और लीडरशिप में जाती हूँ, तो मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मोटो है, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है. मतलब जितना भगवान ने दिया है, अगर हम उनके लिए कितना भी थैंक यू बोलें, कितना भी, मेरे ख्याल से हमारे पास उनको थैंक यू, कहते हैं ना, माता पिता को आप थैंक यू नहीं बोल सकते, तो अपने माता पिता से पहले भगवान भी है. और भगवान ने माता पिता को भेजा हमारे पास क्योंकि वो खुद नहीं आ सकते थे. तो मेरी लाइफ का सिर्फ एक फंडा है, और मैं जब तक मेरे मतलब ये कहते हैं ना, इस शरीर में सांसें हैं, ना तो मैं JCI को छोड़ूंगी. इसलिए हमारा जो PDM है, प्रिविलेज्ड ओनर मेंबर्स, लाइफ टाइम मेंबरशिप आप अपनी वहाँ पर पे कर सकते हैं. और इसलिए जब ये अनाउंस हुआ था तो सबसे पहले अपने जोन से मैंने अपनी मेंबरशिप भेजी थी. तो ना तो मैं JCI को छोड़ूंगी, और JCI ने, चाहे वो लीडरशिप में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मुझे जो भी चीज़ें सिखाई हैं वो हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं उस सोसाइटी को दे सकूँ. Nice. दिस इज़ द टाइम जो हम उन्हें वापस कर सकते हैं. So it's time to return the gratitude. एक्चुअली हम हमेशा लेना जानते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की एक नॉर्मल बात है, हम हमेशा लेना जानते हैं, और जब देने की बारी आती है तो हम कहते हैं कि नहीं अब हम. और मुझे अभी कल ही कोई पूछ रहा था, तब मैंने उससे कहा था कि लीडरशिप कभी ली नहीं जाती. अगर हम ये सोचते हैं कि लीडरशिप हम ले लें और हमें मिल जाएगी, लीडरशिप कभी ली नहीं जाती. लीडरशिप आपकी वर्किंग स्टाइल से, आपके कार्य करने के तरीके से लोग बाग खुद आपको आके देते हैं. सो इफ यू आर सिटिंग हियर, अगर आप आज यहाँ बैठे हैं, अगर सौजन्या जी यहाँ बैठी हैं और सौजन्या जी ने JCs में इतना नाम कमाया है, आज लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो उन्होंने लोगों को फोर्स नहीं किया, उनकी वर्किंग स्टाइल ने लोगों को मजबूर किया कि वो आपको लाइक करें. So this is the main point, and I mention here, please leadership को अर्न करना सीखो, छीनना नहीं. Superb. It is a very powerful statement. Leadership को अर्न करना सीखो, छीनना नहीं. आज तो हर कोई, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर क्षेत्र में
चेयर कुर्सी को खींचते रहते हैं कि मुझे चाहिए, but when you actually earn it with your merits, that is the best thing that you can have. Right. So Asha madam, before we close, any message or anything that you want to share with the people? JSCಯಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸೌಜನ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, JSCಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. JSCಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನು JSCಯಿಂದಾನೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೌಜನ್ಯ, ಜಬ್ಬರ್, ಸಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ JSCಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದು JSCಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಈ JSCಯಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ 18 to 40 ಇಯರ್ಸ್ ಆದವರು ಈ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. 40+ ಆದವರಿಗೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, JSCಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 40+ ಆದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು JSCಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್. ಸ್ನೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಶಾ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 40+, ಹಮಾರ ಏಜ್ ಗೆಸ್ ಮತ್ ಕರು, ಹಮ್ ಅಭಿ ಭಿ ಯಂಗ್ ಹೈ. ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಡಿ, ಯಂಗ್ ಎಟ್ ಹಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ तो बच्चा है जी. क्या मैडम, I mention here one point is very important. मेरा 40 नहीं हुआ है, बोलो मैडम. क्या मैं वही यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि जब मुझे बोला गया JEC ज्वाइन, JEC जैसे स्टार्ट हुआ, मैंने JEC ज्वाइन किया तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे एक ही बात बोली, यार तू 40 की नहीं हुई अभी. ऐसे थोड़ी. अरे मैंने कहा ये तो सिर्फ एक नंबर्स है, ये सिर्फ एक डिजिट है. और सौजन्या, रियली अगर आप इन डिजिट के चक्कर में पड़ेंगे तो हम जो पाना चाहते हैं हम वो नहीं पा सकते हैं. सो प्लीज, एज इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर. नाउ अगर कोई हमसे बात करे तो हम अभी किसी भी 30 साल की प्यारी सी स्वीट सी लड़की से कम नहीं है. आज भी हम 28 और 30 की हैं. सो एज इज नॉट अ नंबर. अगर आप एज को, नंबर्स को साइड में रख देंगे, अगर मैं उस समय ये सोची होती कि यार 40 की मैं नहीं हुई तो आज मैं इस चेयर पे नहीं होती. हाँ, ट्रू. दिस इज द, तो सौजन्या भी नहीं हुई. डोंट वरी. तो मैं JSC के बारे में एक बोलना चाहती हूँ. एवरी JSC मेंबर सेज वन थिंग. JSC है तो ठीक है, 18 to 40 है, लेकिन वंस यू बिकम अ JSC मेंबर देयर इज ओनली वन क्राइटेरिया, 40+. आप 50+ बनो, 60+ बनो, 70+ बनो, यू आर ओनली 40+. और स्टिल दैट ब्यूटीफुल यंग हार्ट. 40 के बाद तो सही लाइफ स्टार्ट होती है. हम सोचते हैं हम 40, अरे 40 तक तो हम बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं. 40 के बाद हमारी सही जिंदगी की शुरुआत है, और उस सही और सुंदर जिंदगी में JEC आपका वेट कर रही है. अगर आप पहले JCI मेंबर रह चुके हैं तो सिर्फ JEC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फिर से हमें हमारे दोस्तों से मिलने का मौका देता है. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಜಲಿ ಬತ್ರಾ ಗುಪ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಫಾರ್ JSC ಫ್ರಮ್ JCI ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಝೋನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಶಾ ಆಲನ್ ವಾಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಟ್ ರೋಲ್ ಆಸ್ ಅ ಲೇಡಿ ಲೀಡರ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, JC ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಒನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. Yes. So thank you so much for giving your time and being here and sharing your views with our people. ಹೋಗೋ ಮೊದಲು one last word for our audience, ma'am, from Anjali. Yeah, sure. I just mentioned my 3 things here, most important. Don't wait for the change. Be the change. Don't search for the hope. Create a hope, and don't look for leader. Become a one. Be the leader. Be the leader, and you just find out inside you. Your leader is your inside. Wow. So work for your leadership. Thank you so much, ma'am. Thank you, Asha madam. Thank you, Anjali madam. It was a pleasure talking to them. हर बार ऐसा टाइम तो मिलता है कि हम गप्पे मारते रहते हैं, लेकिन आज लोगों के सामने लोगों के लिए एक मैसेज लेके आए हैं. So thank you so much for the time, and thank you, Asha, for this privilege. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ signing off with more entertainment very soon. Thank you.